the new lesson, that is getting to know plants. Now you tell me, how many types of plants do you find in your surroundings? What are the various size बता सकते हो कि कितने साइजेस में ये प्लांट्स हमको दिख रहे हैं यहाँ पर आसपास में? हाथ ऊपर उठाओ, कौन बताएगा? हाँ इशिता। हाँ, अभी आपको कौन कौन से तरह के पेड़ दिख रहे हैं, क्या क्या साइज है उनके? मैम उधर से सर कुछ साइज में छोटे हैं, कुछ साइज में बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, है ना? There are some plants which are very small, some are medium size, and some are very tall. Now you can see that this bush that you see which is making the hedge. अगर आप इसको जमीन के साइड में देखो तो आप देखो इसमें जो ब्रांचेस निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है? जो बेस है, the place where the base of the stem is, it is that place from where number of branches are coming out. So what is this plant called as? Shrub. Now you can see another example of this. Which plant is this? This is hibiscus. What do you think this is? A plant, herb or a tree? ट्री। It is a plant, yes. And is it a herb, shrub or a tree? Why can you classify them as shrub? एक बच्चा बताएगा हाथ ऊपर उठा के। हाँ। बहुत सारी branches है। There are number of branches arising from the base, and you can also touch the stem. छू के देखो। तोड़ नहीं देना है, but it is very very hard. It is thin, but it is very hard. थोड़ी सी thick भी है और hard भी है और आसानी से ये टूटेगी नहीं. So such kind of a plant where the branches are arising from the base in quite a large number, and secondly which are having the woody stem. लकड़ी है ना, लकड़ी जैसी stem है और hard है. That kind of a plant is called as a shrub. Now let us take one more plant. Here you can see a कौन सा plant? Which tree is this? Why do you call it as a tree? Raise your hand. Yes, Raghav. And because his stem is very thick and hard, and her branches is Okay. developed. You can see this is a tree which is having a very very thick stem, isn't it? And the main branches are arising from the upper part of the plant. So and the stem of it is very very thick. It is forming a bark, and that is why such kind of plants are called as trees. You can take example of one more tree. You can see that neem tree, isn't it? Can you see why is it called classified as a tree? Number one, and secondly the branches are arising from the upper part. ठीक है? Okay. मैम हो गया। You can see this plant which is having flowers. Yes. Can you see? Yes. Now supposing if I break the stem, did you find that it was difficult for me to break the stem? No. Why? Because One child will give me the answer. ये पेड़ आसानी से क्यों टूट गया? Soft है, इसकी stem बहुत soft है. The stem is very soft, and this plant will survive only for one season. एक season में survive करेगा, उसके बाद this will finish off. And see the height of the plant. So such kind of plants which are very short and which are having very soft stems, they are called as Herbs. Have you understood? Yes, ma'am. Now, can you find in this place a creeper? Can you see? No. Somewhere? No, ma'am. No, ma'am. Why? What is the quality of a creeper? Ma'am, it will spread. Okay. Now let us understand the functions of stem. You have seen the stem of this plant and even the tree. What do you think does the stem does? Stem क्या-क्या काम करती है? सबसे पहले एक बच्चा को इस तरफ का बताएगा. स्टेम क्या काम करती है? अंश बताओ. What is the work of the stem? तुम देखो ना प्लांट में और बताओ क्या कर रही है स्टेम.
मैम इसकी हाइट बढ़ा रही है। हाइट बढ़ा रही है। और क्या प्रेजेंट है स्टेम के ऊपर? क्या लगे हुए हैं? लीव्स लगी है। सो इट इज बेयरिंग द लीव्स, इट इज बेयरिंग द फ्लावर्स, इट इज बेयरिंग द ब्रांचेस, इट इज बेयरिंग द बड्स। अच्छा, एक काम और करती है स्टेम। व्हाट इज इट डूइंग? मैम आपका नाम स्टेम्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। नो, स्टेम इज नॉट absorbing. रूट इज Root is absorbing. So what is the stem doing? मैम हाँ. मैम स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम Conducting the रूट. food material from the roots. It is taking it from the roots and it is giving it to the other parts of the plant. It is conducting it. Conduct कर रही है root से और बाकी parts of the plant में. Okay, now you can see there are some leaves. What is the work of leaf in a plant? What is the work of leaf? You can see all the trees and plants are having green leaves. Can you see this peepal tree? ये पीपल ट्री देखो. यस मैम. इसकी पत्तियां कैसी हैं? मैम ग्रीन ग्रीन. कैसी हैं इसकी पत्तियां? पत्तियां ग्रीन है. क्यों है ग्रीन? Yes, they are green in color. So what will they do? मैम देखो मैम इसमें क्लोरोफिल होता है। हाँ, तो फिर क्लोरोफिल करता क्या है? Yes, it is making the food for the plant because it is performing photosynthesis. सिंथेसिस. एक काम और करती हैं पत्तियां. क्या करती हैं वो? मैम फूड बनाती है। ये तो एक हो गया. एक काम और करती हैं. मैम फ्लावर। There are number of small pores on the leaves. They help in exchange of gases. आप सांस लेते हो, आपके पास नाक है. ये पत्ती के पास क्या है? छोटे छोटे छेद होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे. ठीक है? And these pores are called as stomata. क्या कहते हैं इनको? इनसे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होता है. इतना समझ में आ गया? अभी लीव्स देखो. आपको यहाँ जितने भी प्लांट्स है इसमें दो तरह की लीव्स दिखाई दे रही हैं. एक तो आप देखो ये वाला प्लांट है. Can you see this leaf? इसमें वेन्स कैसी अरेंज्ड है? मैम पैरेलल. और एक पीपल की पत्ती लेके आओ जरा वहाँ से. कैसी है ये पीपल की पत्ती? क्या इसमें वेन्स का अरेंजमेंट पैरेलल है? इसमें आप देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट मेन वेन है ना. इसको क्या कहते हैं? और ये जो इसका जो बड़ा सा चौड़ा वाला पार्ट है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? Yes, this broad part is called as the lamina. And what are these? These are the side veins. So overall, and what is this? This is called as not petiole, it is petiole. Okay. So you can see there is a network of veins which is present in this leaf. So this kind of a leaf is called as having reticulate venation. और इसमें कैसा venation है? और किस में होता है parallel venation? ग्रास में. देखो यहाँ पर ग्रास जो है इस सब में जो है पैरेलल वेनेशन है. Have you understood? Now one more very important thing is, अभी देखते हैं. One more important thing is, now if you don't know the type of roots, by looking at the leaf we can find out what type of roots. Have you seen the roots? एक बीड हम उखाड़ेंगे. एक बीड उखाड़ेंगे जो बेकार वाला पौधा है, हम उसको उखाड़ के देखेंगे कि उसके अंदर वो वाला उखाड़ो. अच्छे से उखाड़ना. नहीं ये जो ये वाला. हाँ. Here you can see I have plucked one plant. This is tap root. Now you can see. और एक घास का भी उखाड़ो. मैम इसके नीचे में रूट है। घास है लेकिन ये ठीक से नहीं उखाड़ी है. उसमें रूट्स होने चाहिए बेटा. थोड़ा सा ऐसा उखाड़ो जिसमें थोड़े से रूट्स दिखाई. जमीन से निकाले। ये वाली घास उखाड़ो. You can see this is the grass that he has brought. Can you see? Yes, Looking at the root you can find out this is tap and this is ये fibrous क्यों है? बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो एक पॉइंट से ही निकल रहे हैं रूट्स के. और इसमें एक जन बताओ. इसमें एक मेन रूट है और बाकी साइड. समझ में आ गया कि नहीं आया? अब आप ये देखिए ये टैप रूट है. इसका वेनेशन कैसा है? और
ये फाइब्रस रूट है, इसका वेनेशन तो अगर हम इसको ना भी उखाड़ें तो क्या बिना देखे हम बता सकते हैं कि which kind of root the plant is possessing? If the leaves are reticulate venation, then what will be the type of root? And if there is parallel venation, then what will be the type? Have you understood? All of you have understood? Varun is talking. What you have understood? Now when you talk about the leaves, you have understood the function. एक function होता है exchange of gases, जो कि leaves के through होता है, क्योंकि उसमें what is present? Pores are present, and what are these pores called as? Stomata. Called as stomata. So exchange of gases takes place. और भी जो excess पानी इस plant में आ जाता है, तो वो क्या करेगा? अगर हीट ज्यादा होगी तो that water will evaporate from the pores. So what will happen? That process is called as that is called as transpiration. क्या कहते हैं इसको? Transpiration. जब excess of water पौधे से उड़ जाता है या पत्तियों के थ्रू पानी जो है वो स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और एक फायदा होता है ट्रांसपायरेशन से, देखें कि कोई बता सकता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट? देयर आर 2 एडवांटेजेस। पेड़ से पानी उड़ता है तो फायदा क्या मिलेगा प्लांट को? पानी कब उड़ता है? जब वो हीट लेगी, जब पानी हीट अब्सॉर्ब करेगा तभी उड़ पाएगा ना, नॉर्मली तो नहीं उड़ेगा। और जब प्लांट से वो हीट ले लेगा तो प्लांट के ऊपर कैसा इफेक्ट होगा? किसी चीज से हीट निकल जाए तो वो कैसा फील करेगा? आपको पसीना आता है, आप साइकिल उठा के बाहर निकल जाओ तो आपको कैसा महसूस होगा? वीक। बहुत गर्मी लगती है। If it is a very hot day and there is no current in your house and you are sweating, now you take the cycle and you go for a long ride, तेज चलाओगे, कैसा लगेगा? तो आपको लगेगा कैसा? ठंडा नहीं लगेगा, गर्मी लगेगी। तुम्हें पसीना आ रहा है, तुम हवा में निकल जाओगे, ठंडा नहीं लगेगा। इसका मतलब कि आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि ऐसा होता है तो आपको कैसा लगता है। ठंडा क्यों लगता है? जो पसीना है वो आपकी बॉडी की हीट को लेके उड़ जाता है। जब आपकी बॉडी से हीट निकल जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? सेम थिंग हैपेंस विद द प्लांट। दिस प्लांट इज स्टैंडिंग इन द सन ऑल द टाइम, तो डोंट यू थिंक इट शुड गेट बर्न्ड? बताइए, आपको हम रात दिन एक ही जगह खड़ा करके रखें, क्या पॉसिबल है? लेकिन प्लांट क्यों रह पाता है? उसके प्लांट से हर समय थोड़ा ना थोड़ा evaporation होता है, so that leaves a cooling effect on the plant, so it can easily survive even if it is in one place. Have you understood? एक काम और होता है, जब पानी ऊपर से उड़ जाएगा तो उस जगह जहाँ से पानी उड़ा है वहाँ पर थोड़ी जगह क्रिएट होगी कि नहीं होगी? अब क्या होगा, जब जगह खाली होगी तो तुरंत नीचे से जो पानी आएगा वो उसको भरने के लिए ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। सो व्हेन दिस वाटर रशेस अपवर्ड्स टू फिल दैट प्लेस, व्हाट विल हैपन? द वाटर विल मूव अप। तो इस तरह से पानी को ऊपर मूव करने में भी मदद करता है और प्लांट को भी कूल रखता है। समझ में आया? इतने इम्पोर्टेंट होते हैं स्टोमेटल ओपनिंग्स जो कि ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में भी मदद करती हैं, है ना? अगर वो पत्ती ऐसे ही छोड़ दो तो उस पत्ती के चारों तरफ से एक नया पौधा निकलने लगेगा। और अगर हम स्टेम में देखें तो कभी कभी स्टेम जो है वो मोटी हो जाती है। आलू देखा है ना? कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है, तो उसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टेम्स, नाउ दिस sorry the roots. What is the function of root? They absorb water and minerals. Yes, पहला काम है कि ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, मैम कंडक्ट अगर हम इसको रूट को काट दें और इसको गमले में लगा दें, मैं वो खड़ा नहीं रह पाएगा। दूसरे क्या ये खड़ा रहेगा सीधे? नो मैम। तो व्हाट डज द रूट डू? मैम रूट Have to stand upright. Yes, it gives mechanical support to the plant. It helps it in fixing it to the ground. तो इसके पहला काम क्या है
ये वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्ट कौन करता है? स्टेम। लेकिन एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट करता है एब्जॉर्ब, और इसको स्टेम तक पहुंचाता है। और दूसरा काम क्या करता है रूट? ये प्लांट को स्टोर फूड मटेरियल। कोई एग्जांपल बताओगे? पोटैटो इज नॉट अ रूट। कैरेट है, रेडिश है, ये सब जो है, मूली और गाजर जो है, ये सब रूट्स हैं। ये क्या करते हैं? फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। समझ में आ गया? Yes, ma'am. नहीं आया? तो these are the various parts of the plant. So roots, number 1 is fixing the plant to the ground. Number 2, it is helping in absorption and water and minerals, and sometimes it also stores food. इतना समझ में आ गया? अब कौन सा पार्ट रह गया जो नहीं पढ़ा हमने? वो है फ्लावर। Okay, this is a guava tree. कोई बात नहीं। ये एक ट्री है, और ये ट्री किसकी है? अब जहाँ पर से इनकी ब्रांचेस निकलती हैं, आप देखिए इस पॉइंट पे आपको क्या दिखता है? यहाँ से छोटी ब्रांच निकल रही है। एक्चुअली ये पहले क्या थी? बड। और ये बड जो है ये ब्रांच में कन्वर्ट हो गई। तो बड ज्यादातर कहाँ से निकलती है? इसके बीच से निकलेंगी। ये एक ब्रांच है और ये एक स्टेम है, इसके बीच में से बड्स निकलेंगे। बड्स दो तरह की होती है, एक जो ब्रांचेस बनाएंगी और एक जो फ्लावर। अब हम देखते हैं फ्लावर का पार्ट, है ना? So you can see this is the flower of which plant? Hibiscus. Now how many parts are there in a flower? 4 parts हैं. Now can you tell me what is this part? No, this is not the stem. पत्ती की लीफ को पीटियोल, डंडी को पीटियोल, पत्ती की डंडी को पीटियोल, तो इसकी डंडी को pedicel. Pedicel is called as the pedicel. Now you can see this green part of the flower, जिसके अंदर सारे अंदर वाले पार्ट्स जुड़े हुए हैं और इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? These are sepals. अगर हम इसको गिने और इसको निकालें तो आपको इसमें, आप खुद गिन के बताओगे कि इसमें कितने सारे पेटल्स हैं। रुको, निकालने दो हमें। अब आप गिन सकते हैं कितने पेटल्स सेपल्स हैं इसमें? 5 सेपल्स हैं, और ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए भी हो सकते हैं और ये नहीं जुड़े हुए हो सकते हैं। बताया था ना मैंने? ओके, नाउ यू कैन सी ये कैसा है कलर में? ये 2 काम करेगा। एक तो ये फ्लावर को बड, जब ये कली होती है फ्लावर, तो इस समय इसको ये प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि कली ने इसको पूरी तरह से कवर किया हुआ था। अभी हम एक कली भी देखेंगे। We will see one bud also. This colored part, what are these called as? Petals. अब अगर इस फ्लावर में देखें तो ये पेटल्स जुड़ी हुई नहीं है। और जो फ्लावर फनल शेप का होता है, जो फ्लावर फनल शेप का होता है उसमें ये जुड़े हुए होते हैं। You can see this is a bud. Here also you can see this is a bud. Can you see this calyx is covering the whole flower inside it? ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। और चूंकि ये ग्रीन है इसलिए ये फूड मटेरियल बनाने में भी मदद कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेटल्स की। तो इसमें कितने पेटल्स हैं? 1 2 3 4 5 पेटल्स हैं, रेड कलर के हैं। तो इनका काम क्या है? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के। तो ये सेकंड पार्ट है, और ये नीचे से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन ये जो है ये अंदर के इस ट्यूब से जुड़े हुए हैं। जब हम हटाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। नीचे हम जहाँ लगा मैं आई एक्सप्लेन वन पार्ट। ठीक है, तो दिस इज द पेटल। नाउ दिस इज द सेंटर मोस्ट पार्ट। आपको क्या लगता है ये कौन सा पार्ट होगा? 2 चीजें हैं इसमें। एक तो आपको रेड कलर का ट्यूब दिखाई दे रहा है, तो अगर इस पे आप ऊपर के पार्ट देखें तो ये येलो कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। These are called as the anthers, और इसका जो रेड धागे जैसा स्ट्रक्चर है वो फिलम है, और दोनों मिला के क्या बनता है? समझ में आया? कौन सा पार्ट है ये? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। कैसा पार्ट है? अब अगर हम इसको रिमूव कर देंगे इसमें से, तो इसके अंदर एक और पार्ट निकलेगा। ठीक है, इसमें से एक और पार्ट निकलेगा अंदर। किसी के पास कंपास है?
रहा है मैम, मम्मी नीचे गिरा हुआ। ये वाला नहीं चाहिए, ध्यान दो वहाँ पर नहीं। सीवन स्क्रीन टलेगा खंबे से दूर। ओह टूट गया। मैम दूसरा मैम। हाँ एक और लेके आओ। क्या हुआ? साइड, डोंट गो दैट साइड। इधर आओ, मैम बुला रही हैं। हमारे देश से जा रहा है। कैसी लग रही है मैम? थोड़ा हटो। Here you can see this. ये इसके अंदर जब मैंने इसके रेड कलर के ट्यूब को निकाला तो इसमें आपको 3 चीजें दिखाई दे रही हैं जो मिलकर के एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रही हैं। और इसको क्या कहते हैं? What is the female part of the flower called as? Pistil. Now you can see this pistil very clearly over here. दिख रहा है आपको? यस You मैम। can see there are 3 parts. ये वाला पार्ट क्या है? Ovary. And what is this? स्टाइल। और ये सबसे नीचे क्या है? स्टिग्मा है। समझ में आया? और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? कैन यू सी द ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा वेरी क्लियरली? सभी को दिखाई दे रहा है? सबसे नीचे ओवरी है, ये क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? और तीनों मिला के सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर हम इसको काटें एक ब्लेड से, अच्छा आपने भिंडी काटी है? भिंडी क्या है? What part of the plant is भिंडी? It is a fruit. If you cut it, ये ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाती है। और अगर आप भिंडी को काटे तो अंदर क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे सीड्स, कच्चे सीड्स दिखाई देते हैं। They are called as the ovules. So where are the ovules present? Inside the ovary. समझ में आया? अगर if you cut the ovary, you will find a number of small rounded structures, and these are called as ovules. ओवरी कहेंगे। अगर हम इसको काटेंगे, आप भिंडी को काटते, भिंडी ओवरी है, भिंडी को काटोगे तो अंदर क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे जो छोटे छोटे कच्चे सीड्स दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं? जब वो पक जाएंगे तब वो क्या कहलाएंगे? सीड्स कहलाएंगे। लेकिन जब तक वो पके नहीं है तब तक समझ में आ गया? Yes or no? Yes ma'am. Okay. Now you can see there is somewhere over here a creeper is there. है ना? Yeah, you can see there is a creeper. क्लाइंबर है। चलो क्लाइंबर है कि क्रीपर है? क्लाइंबर होता तो ऊपर चढ़ जाता, नीचे जा है इसलिए क्रीपर है। कैन यू सी द वीक स्टेम? यस मैम। तो वो प्लांट जिनकी वीक स्टेम होती है वो क्या कहलाते हैं? They are called as creepers. If they climb up some support, then they climb. Have you understood? यस मैम। मनी प्लांट का मनी प्लांट क्या होता है? मैम क्लाइंबर होता है, वो ऊपर चढ़ जाता है। मैम वाटरमेलन का मैम क्रीपर्स होता है। इतना समझ में आ गया सभी के? और कुछ यहाँ पर अलग दिख रहा है जो आपको पूछना है? बताइए। मैम यही मैम पैरेलल है मैम, हम यही पैरेलल है। ये भी पत्ता है लेकिन ये डेजर्ट प्लांट में रहने वाले पत्ते हैं और ये ऐसे हैं जिनमें पैरेलल वेनेशन है। तो ये ग्रास फैमिली को ही बिलोंग करता है, लेकिन ये थिक इसलिए है क्योंकि ये कहाँ पर होता है? डेजर्ट। इसलिए ये भी डेजर्ट एरियाज में ज्यादातर होते हैं। इनको पानी की मैम पैरेलल वेनेशन कही है मैम इसको? हाँ, they are having parallel venation. This is also having parallel venation. Yes, ma'am. And you can see, let us go toward that side जहाँ she was planted by KV2 children nearly 6 to 7 years back when I was in the school. So you can see it has turned into a tree. Now you can see over here that there are some parts which are hanging from this. Can you see this? ये दिख रहा है? क्या है ये? No? मैम फ्रूट। Yes, this is the fruit. मैम कौन सा? You can see this part is the fruit. मैम ये लगा मैम कितने पीछे। सारे हैं ये? मैम ये लगा मैम पीछे। ये देखो कितने मैम सारे ये हैं। है। इसमें देखो ये कितने सारे हैं। यस मैम। मैम ये है। मैम ये भी है, ये भी है। मैम ये कौन सा what are फ्रूट है these? मैम?
You can feel in it. There are seeds inside it. यस मैम There are seeds inside. वो खोल के देख तोड़ो सकते हैं मत, छू के देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है, सीड्स हैं। उनको खोल के देख सकते हाँ, हैं एक को खोल के देख सकते हैं कि इसके अंदर सीड्स है। अभी ये पके नहीं है। These are ovules. कौन से फ्रूट है मैम ये These are ovules. These are leguminous plants. जैसे मटर नहीं होती है फली Yes, वाले, ma'am. Yes, ma'am. उसी तरह की ये फली है। ठीक है, इसके ऊपर में चढ़। तो आई होप नाउ यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज दिस। मैम ये वाला प्लांट कौन सा है लेमन। अब ये क्या है? हर्ब, श्रब की ट्री। मैम shrub श्रब है क्योंकि ये बिल्कुल बहुत सारी ब्रांचेस नीचे से आ रही है। ठीक है, मैम ये वाला मैम ओके। मैम ये वाला मैम मैम ये रेड कलर का कौन देयर इज वन मोर प्लांट ग्रोइंग ओवर हियर। देखिए इसमें एक रोज प्लांट भी उग रहा है। मैम ये कौन सा रोज कौन सा प्लांट है? यहाँ पर रोज भी आ रहा है। रोज इज अ shrub. It is also shrub. ये पीछे लगा हुआ है। ये देखो ये पीछे से है। plant tree bowl Okay, one more plant. चल रहा साढ़े दस चल रहा और पीछे रहो गिर जाएगा There is one more plant you want to know about it. इसका flower है, एक तोड़ के लाओ। बस एक ही तोड़ना, ज्यादा नहीं। देखो दो। This is a plant of spider lily. ये जो plant है ये spider lily है। कोई बात नहीं है। इसमें भी आपको, इसमें थोड़ा सा फर्क, इनको पेटल कहते हैं ना सेपल कहते हैं, है ना। इनको कहते हैं टेपल। ये आप बड़ी क्लास में आओगे तब पढ़ोगे ना। तो ये सेपल है ना पेटल है, ये टेपल है। और देखो सारे जुड़े हुए हैं। और ये जो टेपल है इससे ये भी जुड़ा हुआ है। ये जो ये क्या है, स्टेमेंस है। आपको मैंने बना के बताए थे ना। ये देखो एंथर है। ये क्या है, फिलामेंट है। मिला के क्या बन गया, स्टेमन बन गया। और इसमें ये जो सेंटर पार्ट है, देखो सेंटर पार्ट इसमें भी है। उठाओ 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 उसको। इस part को। हाँ। क्या है ये, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इसमें स्टाइल और स्टिग्मा दिख रहा है। ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। लाओ दिखाओ एक मिनट। इसमें ओवरी के लिए इसको एकदम नीचे से तोड़ना पड़ेगा। ये नीचे से जब तोड़ोगे तब आपको यहाँ पर इसमें ओवरी दिखाई देगी। और जब वो आपने तोड़ा तो आपने ओवरी उसी में छोड़ दी, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही है। समझ में आया? यस मैम So that is all for today. Have you understood this chapter? Yes. कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चंपा है? Have you understood? मैम ये कौन सा प्लांट है This is coleus. कौन सा है ये? Coleus plant. अब इसमें लीव्स कैसी हैं? मैम कलरफुल कलरफुल है। इसमें वेनेशन कैसा है लीव्स का? रेड। इसका रूट कैसा होगा? रूट होगा। और ये पैरेलल वेनेशन है, इसका रूट कैसा होगा? रूट होगा। समझ में आ गया? That's all for today. Thank you so much. Come on, line up over there.